Okay, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your parents, your relative and your friends are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we had just started a third chapter from the last lecture. And I told you that I'm going to provide you the second chapter extra MCQ notes and that already I had provided. आई होप कि आपने वो एमसीक्यू के एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे। तो अभी हम ये आपके अगर कोई एमसीक्यू में डाउट है तो उसको लेके उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में आगे बढ़ने वाले हैं। Am I audible to you all? Yes, sir. ओके तो ये मैंने चैप्टर नंबर 2 का एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू का नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था। तो आप लोगों ने ये सॉल्व किया होगा बिकॉज आपका जो अभी बोर्ड का एग्जाम है तो उसमें अभी तक जो पेपर स्कीम है वो उसमें गुजरात बोर्ड के लिए 50% एमसीक्यू 50% सब्जेक्टिव है। अगर सीबीएसई बोर्ड है तो भी एमसीक्यू का वेटेज रहेगा, उसमें भी 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसमें एमसीक्यू 10 एक एमसीक्यू आते हैं, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन आते हैं एंड 10 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। दैट इज so this MCQ are also important for that objective kind of questions. So you must solve that extra MCQ which is given to you. तो फ्रेंड्स मुझे बताओ किसी का अगर डाउट है तो उसमें। क्या ये आपने सॉल्व किया है? Have you solved this notes or not? क्या आपने ये नोट्स सॉल्व किया या नहीं किया है? Okay, anybody wants to ask the doubts from these notes? फ्रेंड्स क्या कोई मुझे इसमें से डाउट बताएगा कोई? सर अभी सॉल्व करने बाकी है ये। मतलब असाइनमेंट 2 और उसके साथ जो थोड़ा एमसीक्यू है वो खत्म हुआ है, ये अभी बाकी है। Okay. So actually you are having examination on the Sunday, मतलब संडे आपका एक ये सेकंड चैप्टर फुल का एक 100 मार्क्स का एग्जाम है। उसमें 50% एमसीक्यू एंड 50% सब्जेक्टिव ऐसा पेपर मैंने डिजाइन किया हुआ है। संडे यू मस्ट गिव द एग्जाम। आपको संडे ये सेकंड चैप्टर का एग्जाम कंपलसरी देना है। अभी मैं सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ने वाला हूँ, थर्ड चैप्टर में आगे बढ़ने वाला हूँ। सो वी टू स्टार्ट डिस्कस द थर्ड चैप्टर। तो फ्रेंड्स हमने थर्ड चैप्टर में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। कोई मुझे बताएगा हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे थर्ड चैप्टर में? चलो कोई बताएगा विच टॉपिक वी हैड डिस्कस्ड फॉर द थर्ड चैप्टर? सर ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड। कौन बोला? श्रेया। अच्छा, गुड। सो बेसिकली हमने
अच्छा, somebody are commenting, let me check. Okay, so I'm going to revise whatever we had learnt in the third chapter. So chapter number 3 was current, electricity. So उसके अंदर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया. तो द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज अ dq by dt. That was the generalized formula of electric current that we had discussed. After that, I had also mentioned the difference between the steady current and unsteady current. For the steady current, we can write I is equals to q by t. For the unsteady current, we have to write I is equals to dq by dt. For the steady current, I can say q equals to it. But for the unsteady current, we have to say, if the current is varying with the time, we have to say that q is equals to integration I dt. And then correspondent to some MCQ also, we had MCQ kind of questions we had discussed. Then after we had started to discuss the Ohm's law, and we come to know that the current proportional to potential, so that the V upon I ratio remains constant, and that constant is considered to be a resistance. So we had learnt where R is a resistance, and we also had discussed the limitation of the Ohm's law. There was a 3 limitation. According to the Ohm's law, the relation of I versus V must be a straight line, but there are some devices like semiconductors. So for that, I versus V relation is non-linear. Number 2, according to the Ohm's law, the potential current does not depend on the sign of the potential difference. बैटरी कौन से डायरेक्शन में आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. But actually, for the PN junction diode, it is found if we change the polarity of the battery, then the I versus V relation is also gets changed. So that is one more limitation of the Ohm's law. And the number 3, according to the Ohm's law, if we got the relation I versus V, then it should be a 1-1. For one value of the current, we got the only one value of the voltage. But gallium arsenide kind of devices, kind of material are there, for which if we draw the graph of I versus V, we come to know that for the single value of the current, we got the more than one value of the potential. So 1-to-many function we obtain in place of 1-to-1 function. So these are the limitation. अब कोई मुझे बताएगा on which parameter resistance depends? कोई बताएगा? Temperature. Okay. R is depend on number 1, temperature. Apart from that, dimensions. Yeah, very good. Temperature, then after it is also depend on the dimensions. And number 3, Type of material. type of material. Very good. तो type of material and temperature के साथ variation कैसे होगा? Type of material के ऊपर तो डिपेंड है ही है, बिकॉज जैसे आप देखो तो रबर है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टोस है, तो ऐसे जो मटेरियल है उसमें करंट इजीली पास नहीं हो पा रहा है, तो उसका मतलब कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. बट अगर मेटलिक की बात करते हैं तो मेटल में इजीली करंट फ्लो होता है, तो उसका मतलब कि रेजिस्टेंस कम होगा. वैसे रेजिस्टेंस है क्या पता है आपको? When the charge passes from the material, charge may be electron. देखो मेटल के लिए जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है मेटल के अंदर. बट अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन के द्वारा करंट फॉर्म नहीं होता है. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के मोशन के द्वारा करंट प्रोड्यूस होता है. मतलब करंट प्रोड्यूस करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी
that every time the electron need to flow. It is not necessary. अलग अलग टाइप के मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर जो करंट प्रोड्यूस करते हैं उसको चार्ज कैरियर बोलते हैं. वो चार्ज कैरियर अलग अलग है. मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, सेमीकंडक्टर के अंदर electrons and hole are behaving as a charge carrier, and for the ionized gas, positive ions and electrons behave as a charge carrier in the ionized gas. तो अलग अलग मटेरियल के अंदर कंडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग टाइप के चार्ज फ्लो होते हैं. तो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस क्या है. तो रेजिस्टेंस जब चार्ज कैरियर जिसके द्वारा करंट प्रोड्यूस होता है, तो चार्ज कैरियर जब वो मटेरियल में से पास होते हैं तो उसको कुछ अपोजिशन मिलता है, उसका मोशन रिस्ट्रिक्ट होता है. जैसे अगर मेटल की बात करता हूं तो अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तो वो आयंस के साथ, वो मेटल के अंदर जो आयंस होते हैं वो वाइब्रेशंस करते हैं, उसके साथ कोलाइड होते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि उसका जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, वो अपोज होता है. तो दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने का रीजन ये है कि चार्ज कैरियर का मोशन को रिस्ट्रिक्शन होना. सो दैट विल कॉज द रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस तीन चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड होगा ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज अलग अलग मटेरियल के लिए वो कंडक्शन अलग अलग होता है, वो तो हमको पता है. टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन कैसा है वो आज हम डिस्कस करेंगे. बट अभी हमको जो डिस्कस करना है वो डायमेंशन की बात है. अभी हमको जो डिस्कस करना है वो डायमेंशंस की बात है. तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं. क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द डायमेंशंस, और एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस विद ऑन द डायमेंशंस. तो फ्रेंड्स, अभी हमारा टारगेट क्या है एक बार बता दो मुझे. क्या टारगेट है अभी हमारा? बोलो आज का टारगेट क्या है. तनिष है वहां पे? तनिष, तनिष, dependency of the resistance on the dimensions, that is our target. डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, दैट इज द डायमेंशंस. अच्छा, क्या ये मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हो? आस्था है वहां पे? आस्था, हाँ सर. ध्रुवी, ध्रुवराज सिंह, एक बार मुझे अटेंडेंस लेना है आज. यस सर. ओके. दिव्यराज सिंह, यस सर. हार्दी, हार्दी, हार्दी. Yes, sir. ओके. जीत देसाई, यस सर. जूही, जूही पटेल, यस सर. जूही शेठ, यस सर. कशिश, यस सर. परी, परी पटेल, परी, प्रियांश सोलंकी, प्रियांश सोलंकी, ऋषि दोषी, Yes, sir. साक्षी, Yes, sir. तनिष,
Yes, sir. टीसा त्रिपाठी, टीशा त्रिपाठी, हर्ष त्रिवेदी, हर्ष, हर्ष है वहां पे? हर्ष, विश्वास, Yes, sir. यशराज, यशराज, Yes, sir. विश्वा शाह, Yes, sir. ओके, वंशिका, Yes, sir. वैभवी, Yes, sir. माहिर सिंह, माहिर सिंह, माहिर, नंदिश शाह, Yes, sir. ओके। देखो, अभी हमारा जो टारगेट है वो मटेरियल का रेजिस्टेंस उसके डायमेंशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं। एक क्यूबॉइड टाइप का एक ऑब्जेक्ट अज्यूम करो। ओके, और मैंने ये क्यूबॉइड टाइप के ऑब्जेक्ट ऐसे आई करंट पास किया हुआ है। जो करंट हमने यहाँ पे पास किया हुआ है वो आई है। और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अज्यूम करते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट मैंने आई पास किया हुआ है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अज्यूम कर रहे हैं कि V है। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, I can say the resistance of this cuboid kind of object can be considered to be a V by I according to Ohm's law। अगर उसका पोटेंशियल, उसके दो एंड के बीच का पोटेंशियल V है एंड अगर उसमें से करंट I पास हो रहा है तो आई कैन डेफिनेटली से दैट द V by I विल गेट यू द रेजिस्टेंस। वो आपको रेजिस्टेंस देगा। अब एक दूसरा केस अज्यूम करो कि जिसके अंदर एक दूसरा केस अज्यूम करो कि जिसके अंदर ओके, ऐसे दो क्यूबॉइड एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। ऐसे दो क्यूबॉइड को एक दूसरे के साइड बाय साइड वहां पे प्लेस किए हुए हैं। ओके, अब इसमें से भी मैंने करंट आई पास किया हुआ है, यहां पे भी करंट को आई ही रखा हुआ है। और ये दोनों क्यूबॉइड एक टाइप के ही है, एक जैसे ही है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर दोनों क्यूबॉइड एक जैसे ही है तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो भी इक्वल ही होगा। तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो भी सेम ही होगा।
तो अगर ऐसा है कि भाई दोनों में से करंट सेम पास हो रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल भी दोनों का सेम ही रहेगा, बिकॉज दोनों एक ही टाइप के क्यूबॉइड है। तो अब सोचो कि अगर यहाँ पे करंट I पास हो रहा है तो इसका भी पोटेंशियल V रहेगा, इसका भी पोटेंशियल V रहेगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर फिगर 2 के बारे में सोचते हैं, अगर फिगर नंबर बी के बारे में सोचते हैं, तो व्हाट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द होल कॉम्बिनेशन? बोलो मुझे ये बताओ कि अगर ये यहाँ इसका पोटेंशियल V है, इसका भी V है, तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? वो दोनों सीरीज में है 2v। तो पूरा कॉम्बिनेशन है जो है उसका इफेक्टिव पोटेंशियल 2V रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ ये जो पोटेंशियल अपॉन करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल 2V है एंड करंट तो I ही है, सो दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो 2V/I है एंड V/I तो फ्रेंड्स R है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अब जो बी फिगर है उसका रेजिस्टेंस 2R हो गया। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द कंक्लूजन वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर? कोई बताएगा उसमें से कंक्लूजन क्या मिला? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मुझे ये पता चल गया कि दूसरा वाला जो फिगर है उसका रेजिस्टेंस 2R है। तो कोई मुझे बताएगा इसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? R effective double. length. So conclusion is that if the length is doubled, then resistance also get doubled. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू L है। सो दैट इज द कंक्लूजन वी आर एबल टू ऑब्टेन फ्रॉम द फिगर नंबर बी। तो फिगर नंबर बी से हमको ऐसा पता चला कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। अब इन द थर्ड फिगर मैं वापस से वही क्यूबॉइड का अजम्पशन करूंगा, बट अब मैं क्या करूंगा कि इस क्यूबॉइड को इसके बीच में से इसको मैं क्यूबॉइड को कट करने वाला हूं। अब जो थर्ड फिगर है उसको मैं बीच में से कट करने वाला हूं। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको बीच में से हॉरिजॉन्टली कट कर दूं तो मुझे ये बता दो कि जो अब ये उसके जो दो पार्ट हो गए वो दोनों पार्ट के क्रॉस सेक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मैंने इसको बीच में से काट दिया तो उसके इसका जो क्रॉस सेक्शन था वो ए था, मतलब पूरा जो क्यूबॉइड था उसका क्रॉस सेक्शन ए था। तो अब मैंने इसको बीच में से काट दिया, तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों जो पार्ट है उन दोनों का क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? A/2. ऑब्वियसली अब दोनों का क्रॉस सेक्शन A/2 ही हो जाएगा। एंड मैंने करंट तो I ही पास किया हुआ है, करंट मैंने I पास किया। तो मुझे ये बताओ कि ऊपर नीचे कितना कितना करंट पास होगा फिर दोनों? I/2. हाँ, तो आधा करंट ऊपर जाएगा, आधा करंट नीचे जाएगा। I/2 अब I/2 डिवाइड हो जाएगा और वापस से बाहर निकलते टाइम वो वापस से I हो जाएगा। अब फ्रॉम द फिगर वन जो है उसके ऊपर से ये तो ऐसा तो कह ही सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो V का V ही रहेगा, बिकॉज पूरा अगर सिस्टम है उसका तो एक ही क्यूबॉइड है तो उसका पोटेंशियल तो V ही रहेगा। मतलब पोटेंशियल V ही है, दोनों पैरेलल में है।
तो ये यहाँ पे दो हाफ सेगमेंट पैरेलल में है, तो उसका दोनों का पोटेंशियल भी रहेगा. तो फ्रॉम द फिगर सी, considering only half part, तो वापस से ओहम्स लॉ अप्लाई करो. ओहम्स लॉ अप्लाई करो. तो पोटेंशियल तो V ही है, बट करंट कितना है? कोई हाफ पार्ट कंसीडर करो. पोटेंशियल तो V है, बट उसमें करंट कितना है? I/2. I/2 है. But according to Ohm's law, this ratio is comes out to be its resistance. तो उसका रेजिस्टेंस को अगर R डैश बोलते हैं तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा? वापस से 2E/I हो जाएगा. बट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, V/I तो क्या है? Resistance. इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द होल क्यूबॉइड. तो वापस से मुझे ऐसा पता चला कि अगर कोई मैं एक पूरा क्यूबॉइड का जो अगर आधा सेगमेंट में कंसीडर करता हूँ, आधा सेगमेंट, तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा. देखो, तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कैन एनीबॉडी विल टेल मी व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम इट? इससे कंक्लूजन क्या मिला? कोई बताएगा मुझे? बताओ. V remains the same. if the cross section is halved, अगर हम क्रॉस सेक्शन को, if the cross section become half, then रेजिस्टेंस, बोलो क्या प्रूव हुआ? अगर आधा क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते तो उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? Double. रेजिस्टेंस बिकम्स डबल. रेजिस्टेंस डबल हो गया. तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? 1/A. 1/A. तो फाइनली इसके द्वारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं, from the equation number 2 and equation number 3, we can say that R proportional to, R is directly proportional to length, but it is inversely proportional to the cross sectional area. It is directly proportional to the length, but inversely proportional to the cross sectional area. So now combining both the thing, I can say R proportional to L/A. Now removing this proportionality sign, we got a constant here, and this constant of proportionality here is defined, is said to be a resistivity. इसको resistivity बोलते हैं. तो फाइनली फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 मार्क्स में ऐसा आ सकता है. एक्चुअली ये सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द डायमेंशंस, or prove that resistance directly proportional to the length but inversely proportional to the cross sectional area. So finally friends, we come to know that this resistance is depend directly proportional to the length, inversely proportional to the cross sectional area, and we got the newer equation. We got the newer equation for the resistance, that is R is equals to rho L upon A. तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, R is equals to rho L upon A. तो अब इसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के सीबीएसई के एग्जाम में पूछा हुआ है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड डिस्कस इट्स यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऑन विच पैरामीटर रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट. सो द क्वेश्चन इज,
Question is, what is resistivity on which factor it is depend on? Write its a unit and dimensional formula. So that was also the question asked in the CBSE board exams. चलो फ्रेंड्स, अभी हमको एक इक्वेशन पता चला. चलो बोलो कौन सा इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन की बात कर रहा हूँ? Rho L by R is equals to rho L upon A. So that is the equation we are able to obtain. तो इसके द्वारा मुझे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन प्रिपेयर करना है, डेफिनेशन बनाना है. तो R इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू, कहना है इसे आर ए बाई एल. चलो इसके द्वारा अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि L इज इक्वल्स टू 1 मीटर हो जाएगा, और अगर एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, अगर लेंथ को मैं 1 कर देता हूं, एरिया को भी मैं 1 कर देता हूं, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो R है वो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा. चलो तो उसके द्वारा डेफिनेशन बनाओ. चलो क्या इसका डेफिनेशन बनेगा, कोई बताएगा मुझे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर having 1 meter length and 1 meter square cross section is defined as a resistivity. तो resistance of a conductor having 1 meter length and 1 meter square cross sectional area is comes out to be a resistivity of that material. तो कोई मुझे बताएगा उसका यूनिट क्या होना चाहिए रेजिस्टिविटी का? ओम मीटर. तो इसका यूनिट होगा ओहम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. सो इट इज कम्स आउट टू बी अ ओहम इंटू मीटर. एंड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद बना देना. ओहम का होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट मतलब जूल पर कूलम. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद ट्राई करना. वोल्ट अपॉन एम्पियर ओहम का, और वोल्ट का होता है जूल पर कूलम. तो उसके ऊपर से आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना देना. Always remember that the resistivity is depend only on the temperature and the type of material. Resistivity is depend on the temperature and type of material. It should be remember that ये आपको हमेशा याद रखना है कि resistivity does not depend on the dimensions. याद रखना फ्रेंड, रेजिस्टिविटी वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खाली टाइप ऑफ मटेरियल एंड उसके टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो अगर आपके पास कॉपर का वायर है, तो कॉपर का अगर थिक वायर है या थिन वायर है, बट उसका रेजिस्टिविटी तो कॉपर का ही रहेगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन. दैट शुड बी रिमेंबर. द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी.
The reciprocal of the resistivity is defined as a conductivity. तो कोई मुझे बताएगा what should be the unit of the conductivity? Conductivity का यूनिट क्या होना चाहिए? 1 upon omega meter. Obviously, the unit of the conductivity is equals to 1 upon ohm meter. So it is actually a mho meter inverse. इसको साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं. इसको साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं. तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में हमने सारा डिस्कशन किया. अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ which is frequently asked in the different competitive examination. The question is, क्वेश्चन ऐसा है, if the length of wire is doubled by stretching the wire, then its resistance. वायर को स्ट्रेच करके मैंने उसका लेंथ डबल किया हुआ है, तो इसके रेजिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है. व्हाट हैपेंड टू इट्स रेजिस्टेंस? चलो कोई मुझे बताएगा क्या होना चाहिए? बाय स्ट्रेचिंग द वायर आई हैड डबल द लेंथ, डबल टू द रेजिस्टेंस. डबल तो जब कौन बोला? सर ऋषि. रॉन्ग आंसर, डबल नहीं होगा. चलो सर सेम. कौन बोला? तनिष. तनिष सेम भी नहीं होगा, रॉन्ग आंसर. हाफ. हाफ नहीं होगा, रॉन्ग आंसर. और बताओ. बोलो. सर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर लॉजिक है? सोचो. सर स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ भले डबल हो जाएगी पर एरिया भी थोड़ा डिक्रीज होगा ना. हाँ, एरिया भी डिक्रीज होगा. तो सोचो अब क्या आना चाहिए आंसर. आंसर तो कुछ ऐसे रफली 3/2 2/3 कुछ. अच्छा, मेरी बात सुनो. अब यहाँ पे तनिष ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट किया कि अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका लेंथ बढ़ेगा, बट साइमल्टेनियसली उसका एरिया भी डिक्रीज होगा. अब एरिया का क्या होना है वो तो पता नहीं है. लेंथ का तो डबल होना है, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट एरिया का क्या होना है वो तो पता नहीं है. तो कैसे पता चलेगा कि कैसे कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? सर वॉल्यूम इक्वल करके. हाँ, देखो अब मेरी बात सुनो. अगर 5 ग्राम का वायर है, 5 ग्राम का वायर है, तो उसको हम स्ट्रेच करेंगे, उसका लेंथ डबल कर देंगे, तो क्या वो 10 ग्राम का हो जाएगा? नो सर. नहीं होगा ऑब्वियसली. तो उसका मास तो जो है वही का वही रहने वाला है. इज इट ओके? यस सर. अब मास इज इक्वल्स टू क्या होता है कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी का सिंबल यहाँ पे मैं डी बोलता हूँ बिकॉज रो, जो यहाँ पे रो इज द सिंबल फॉर द रेजिस्टिविटी. फ्रेंड्स यहाँ पे जो रो है इट इज द सिंबल फॉर द रेजिस्टिविटी. तो डेंसिटी के लिए मैंने डी लिखा हुआ है. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब फ्रेंड्स अगर हमारे पास एक सिल्वर का वायर है, तो उसको हम स्ट्रेच करके उसका लेंथ अगर डबल कर देंगे तो क्या वो गोल्ड का हो जाएगा? नो सर. नहीं होगा ना. तो मैं वही काम ना करूं यहाँ पे खाली खोटा. अगर सिल्वर का वायर गोल्ड का हो जाता है तो वही करना होता है ना.
तो वो तो नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि डेंसिटी रिमेन्स द सेम। अगर आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो वो डेंसिटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट, मटेरियल तो चेंज नहीं होने वाला है, तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो मतलब ऐसा हुआ कि जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसका वॉल्यूम रिमेन। सब 4 आंसर आ रहा है। हाँ, अब आपको शायद पता चल गया कि आंसर 4 आना चाहिए, बट तो भी एक बार मेथड देख लो। मेथड ऐसा है कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपको क्या करना है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो। तो यहाँ पे मुझे लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करो, लेंथ से डिवाइड करो। तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, लेंथ से डिवाइड करूंगा। बट फ्रेंड्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ तो क्या होता है? क्रॉस वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, अब पता चला कि R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, because resistivity does not depend on the dimensions, and resistivity and volume both remains constant. When you stretch the wire, neither resistivity nor volume changes. तो जब आप स्ट्रेच करते हो वायर को तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, अगर L का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो फाइनली मैं ऐसा कह सकता हूं कि R डैश अपॉन R इज इक्वल्स टू L डैश अपॉन L द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे L डैश तो 2L है, तो 2L अपॉन L द होल स्क्वायर, तो ये 4 बचेगा। तो मतलब ऐसा हुआ कि R डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू R। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन ऐसा है, लेंथ ऑफ वायर is increased to 4 times. Then its resistivity blank. चलो, length of the wire is increased to 4 times, then what happened to its resistivity? सेम। कांस्टेंट तो क्या आंसर आना चाहिए? कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इट इज नॉट, डज नॉट चेंज as it is not depend on the dimensions. That is not depend on the dimension. So क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको? सर रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, तो आप खुद सोच लो, तो क्या होना चाहिए था? 16. ये यहाँ पे रिलेशन डिराइव किया ना हमने, ये रहा रिलेशन 16. हाँ, 16. तो वो 16 आ जाएगा ऑब्वियसली। ओके सर। हाँ, अगर स्ट्रेच करके लेंथ को 4 टाइम बड़ा किया तो, अगर उसको स्ट्रेच करके उसका लेंथ बढ़ाया है तो। चलो एक और क्वेश्चन है, उसका मुझे सब बाय लिखा होता था। सोच के आंसर देना। क्वेश्चन ऐसा है, on stretching the wire, its radius
of cross section reduced to half. If initial resistance of a wire is at 20 ohm, then what will be new resistance? 320. 320 कैसे बताओ? सर r by 2 का स्क्वायर तो r by 4, तो एरिया 4 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, मतलब लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस 16 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब 20 into 16. तो आपने सही आंसर दिया है, बट आप जो समझा रहे हो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझा रहे हो. देखो आपका आंसर एकदम सही है. रेजिस्टेंस 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. कैसे समझाऊं मैं आपको? देखो मैंने आपको क्या बताया था. सर मैंने वही बोला है. हाँ, मैं वही तो बोला हूँ कि आपका आंसर एकदम सही है. तो अब मैं समझा रहा हूँ उसको कैसे सोल्व करते हैं. तो मैंने आपको क्या बोला था कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? या रेडियस. क्रॉस सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, रेडियस के बारे में. तो पहले क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. बट लेंथ इनटू द क्रॉस सेक्शन क्या होता है? वॉल्यूम होता है. एंड अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर. तो दैट्स व्हाई आई कैन से R इज इक्वल्स टू रो वी अपॉन. अब ये ए स्क्वायर, ए क्रॉस सेक्शन का तो आपको पता है कि ये वायर जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है. वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर. और उसका वापस से स्क्वायर है. देखो पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और वो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा रो वी अपॉन पाई स्क्वायर आर पावर 4. तो मतलब अभी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसका रेजिस्टिविटी या उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर पावर 4. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आर डैश अपॉन आर, तो उल्टा रिलेशन मिलेगा मुझे. आर पावर 4 अपॉन आर डैश पावर 4. बट ये आर डैश जो है वो तो आर बाई 2 है. तो आर अपॉन आर बाई 2 द होल रेज टू पावर 4. मतलब ये आर कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू 4 बचेगा, मतलब 16 बचेगा. तो जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस से 16 टाइम ज्यादा होगा. तो 20 into 16 विल गेट यू द 320 आंसर. तो क्या ये फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आया? Yes, sir. Is it clear to you everybody? Yes, sir. Okay. और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो. Wire is stretched in such a manner that its length is increased by 10%. The length of the wire is increased by 10% by stretching it. लेंथ को स्ट्रेच करके उसका लेंथ, वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ 10% बढ़ाते हैं. तो सोच के बताओ कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? 121. Hmm, Sorry, 21. हाँ, तनिष फास्टर है, तो सही बात है आपका. तो इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 10%, its resistance is increased by 21%.
if length of wire is increased by 10% by stretching the wire, then percentage change in its resistance, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इसका मुझे ये पूरा इसका फोटोग्राफ को भेजना है ना, इसलिए। तो अभी इसका सॉल्यूशन, चलो तनिष्क बताओ कैसे किया आपने। Sir, resistance upon R dash equals to L square upon L dash. या परफेक्ट। मतलब L dash square. तो अगर आप लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो R डैश अपॉन R इज इक्वल्स टू L डैश अपॉन L द होल स्क्वायर। बट यहाँ पे जो L डैश दिया हुआ है नया लेंथ, तो वो L तो था ही, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ। सो L डैश इक्वल्स टू L प्लस 10% ऑफ L, मतलब L प्लस 0.1 L। तो ये L प्लस 0.1 L का मतलब हुआ 1.1 L। वैसे भी आपको पता है कि 10% इंक्रीज होना, इसका मतलब ऐसा हुआ कि 110% होना, एंड 110% होना का मतलब ऐसा हुआ कि 1.1 टाइम्स होना। तो जो नया लेंथ है वो 1.1 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि R डैश अपॉन R इज इक्वल्स टू 1.1 L अपॉन L द होल स्क्वायर। L स्क्वायर कैंसिल, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21। तो R डैश इज इक्वल टू 1.21 R होना, इसका मतलब ऐसा हुआ कि 121% होना। तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय, इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो वो कह सकते हैं कि 21% हुआ। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगह पे ये रिलेशन आता है। तो ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, तो और रिलेशन y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रिलेशन बहुत बार फिजिक्स के अंदर आता है। देखो बहुत सारे जगह पे ये रिलेशन आया हुआ है। अगर आप, मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम हाइट प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर, रेंज प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर, स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ यू रिमेंबर प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, देन हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। तो बहुत सारे जगह पे ये रिलेशन आता है। यहाँ पे रिलेशन क्या आया, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आया, रेजिस्टेंस R। तो ये जो रिलेशन है ना, वो बहुत सारे जगह पे आता है फिजिक्स के अंदर, बहुत सारे जगह पे। तो ये सारे रिलेशन के लिए, ये सारे जहां पे ये रिलेशन आता है, तो उसके लिए हम ये कॉमनली ऐसा कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कॉमन हम कह सकते हैं percentage change in X, so here a percentage change in Y। तो अगर X के अंदर परसेंटेज चेंज अगर 0 to 8% है, तो यहाँ पे आप सेम मेथड, यू कैन अप्लाई दिस मेथड ये रहा, दिस इज द मेथड, ये मेथड है। बट ये मेथड के द्वारा अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द डबल आंसर। अगर 10% है X का इंक्रीमेंट, तो क्या आंसर आएगा, अभी हमने डिस्कस किया, क्या आएगा, 21% आएगा। अगर यहाँ पे X का इंक्रीमेंट 20% होता ना, तो कोई मुझे बताएगा क्या आंसर आना चाहिए, 42। अगर यहाँ पे 100% इंक्रीज होता, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या आंसर आता,
300. एंड अगर यहाँ पे 200% इंक्रीज होता तो यहाँ पे आता 800%. 100. मेथड ये रहा. आप देखना ये मेथड, मतलब ये मैंने इसलिए लिखा कि बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये फ्रीक्वेंटली इसके टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मेथड के द्वारा आप सोल्व कर सकते हो. बट ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो फ्रीक्वेंटली अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने देखा हुआ है. तो क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा. तो अब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया. वो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट होता है उसके डायमेंशन के साथ, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो इसको अभी मैं निकाल रहा हूं. अब मैं एक और थियरी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. एक नया क्वांटिटी पिक्चर में ला रहा है हम. एक नया क्वांटिटी पिक्चर में लाने वाले हैं. दैट इज अ करंट डेंसिटी. ओके. टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज करंट डेंसिटी write its formula. चलो फ्रेंड्स, आप बताओ डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? Mass per volume. मास पर वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? Energy per volume. एनर्जी पर वॉल्यूम. नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर डेंसिटी क्या होता है? N/V. नंबर ऑफ आप गिवन सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर पर वॉल्यूम. तो सारे डेंसिटी में पर वॉल्यूम आता है. I by volume. नंबर डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर वॉल्यूम. बट करंट डेंसिटी एक्सेप्शनल केस है, वहां पे पर वॉल्यूम नहीं आता है. तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको. करंट डेंसिटी नया क्वांटिटी मैंने पिक्चर में इंट्रोड्यूस किया हुआ है. तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक करंट passing perpendicularly per unit cross section area, per unit cross sectional area at any point on a conductor is defined as a current density. Defined as a current density. So friends, am I audible to you? Yes, sir. Okay. तो करंट डेंसिटी का जो सिंबल है वो J है. तो J इज इक्वल टू, आई कैन सिंपली से I by A.
but actually यहाँ पे I and A should be perpendicular. Current passing perpendicularly from the cross sectional area per unit cross sectional area is defined as a current density. Current density is a vector quantity. It is a vector quantity and its direction is taken in the direction of electric current. It is a vector quantity. It is a vector quantity and its direction is taken in the direction of current. तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी, उसका यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए इसका करंट डेंसिटी का? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. It is the amount of electric current per unit cross sectional area. So its unit is a ampere per meter square. Suppose कि कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए है. Suppose from the cross section delta A, delta I current is passing perpendicularly. This much current is passing perpendicularly. Then average current density क्या लिखना चाहिए मुझे? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए लिखना चाहिए. सो आई कैन से अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी लिखना है, अगर इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? दैट्स व्हाई J is लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0. limit delta A tends to 0, delta I upon delta I, but now this will be converted into the di by dA. So that's why I can say that di is equals to J dA, and taking integration I should say integration di is equals to I is equals to integration, actually the more general formula is integration J dot dA. That should be remember. Integration J dot dA. So this is the more general formula for the current density. तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये करंट डेंसिटी एंड करंट के बीच का रिलेशन है. तो इंटीग्रेशन जेडा जेडा बेडा जेडा integration E dot dA. Integration E dot dA was the electric flux. Integration B dot dA, we will learn this, it is a magnetic flux. And integration J dot dA is the electric current. But friends ये तीनों फॉर्मूला में येडा बेडा जेडा ये सब जगह पे आपको एक ध्यान रखना है. आपको एंगल लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल अगर आप लिखते हो इंटीग्रेशन J dot dA का मतलब हुआ ऐसा हुआ इंटीग्रेशन J dA cos थीटा हुआ. तो यहाँ पे एंगल किसके बीच का है? वेक्टर J एंड वेक्टर dA के बीच का है. तो याद करो फ्लक्स में हमने बहुत बार किया था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. उसके लिए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. उसके बाद आप जाके एंगल निकाल सकते हो. तो येडा बेडा जेडा ये तीन जगह पे at a time of deciding angle you must take care, because this is the angle with the vector area vector, and area vector is taken perpendicular to the cross sectional area. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. बट अगर J कांस्टेंट है and if cross sectional area is already perpendicular, if J is constant and
क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ परपेंडिकुलर, बोलो तो एंगल कितना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर है तो? अगर क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो वेक्टर जे एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना होगा? बोलो। तो एंगल कितना होगा? 0. 0 होगा. So on that circumstances this formula becomes j बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी मतलब a हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा. तो आइजा ना हुए तेल पीवा जा. तो आइजा is a valid but when the j is constant and cross section is a perpendicular, then and then आइजा is a valid, otherwise नहीं. और j is equals to I by a. So that is all about the current density. So this is a general formula. This formula is actually a general formula of a current density. And this formula, I can say this formula is a special case. So friends, that is all about the current density. अब यहाँ पे हम ऐसा मान के चलेंगे इस चैप्टर में, ये चैप्टर में हम ऐसा मान के चलेंगे कि J कांस्टेंट ही है एंड करंट परपेंडिकुलर ही है, मतलब वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. तो a very important and today's last question, a very important and today's last question, derive a vector form of Ohm's law. Question is derive the vector form of Ohm's law. Or prove that J is equals to sigma E. That is the important question and today's last question. Okay. Friends, as we know, according to the Ohm's law, we know that V upon I is equals to R. So I can say V is equals to IR. V is equals to IR. But friends, R के बदले हम क्या लिख सकते हैं? बोलो फ्रेंड्स, R के बदले क्या लिख सकते हैं? Rho LA. रो एल बाई ए. एंड याद करो कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम? कैपेसिटर के थियरी में पोटेंशियल डिफरेंस हम V इक्वल्स टू half CV square. वो तो एनर्जी था, Uh, हम लिखते थे ET. बट यहाँ पे वायर का लेंथ L है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल होगा. कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D था, तो वहां पे दो प्लेट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम E इंटू डी लिखते थे, यहाँ पे E इंटू एल होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस के बदले आएगा E इंटू एल. ये कहाँ से आया? ये जो फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन E डॉट डी एल, वहां से ही आया है ये फॉर्मूला. इस फॉर्मूला के द्वारा ये प्रूव हो सकता है. It can be proved by definition of the potential. Potential is equals to integration E dot dl is equals to I. R के बदले क्या लिखना चाहिए? Rho L upon A. So LL get cancelled both the side. LL get cancelled from both the sides. So E is equals to I by A into rho. But friends, I by A तो क्या है?
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J है इनटू रो. तो फाइनली वी कम टू नो दैट E is equals to J rho, but as we know rho is equals to क्या होता है 1 upon sigma conductivity sigma resistivity rho. So finally I can say E is equals to J upon sigma. तो अगर J को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो हो जाएगा सिग्मा इंटू E. So this is what is the formula that we want to prove. इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं and that is why it is also named as a vector form of the Ohm's law. इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. So that is why it is also known as a vector form of the Ohm's law. क्या फ्रेंड्स ये थ्योरी आपको समझ में आया? यस सर। तो फ्रेंड्स आज मैं जो भी स्क्रीनशॉट आपको भेजने वाला हूं वो आपको 2 टाइम्स लिखना है. दैट इज योर होमवर्क. जितने भी आज मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजने वाला हूं वो सारे आपको 2 टाइम्स लिखना है. दैट इज व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडेज लेक्चर. आपको संडे एग्जाम है आपका. कल आपका JEE का लेक्चर है एंड संडे आपका एग्जाम्स है. एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट उसका आपको प्रिपरेशन करना है. और सैटरडे मतलब कल JEE का लेक्चर और वापस से हम कब मिलेंगे? ट्यूसडे को मिलेंगे. फ्रेंड्स हमारे जो लेक्चर कभी कभी कोई बंदा मंडे एंड वेडनेसडे को भी आ जाता है. तो फ्रेंड्स हमारे जो लेक्चर होते हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होते हैं. तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ. किसी को कुछ पूछना है? સર હોમવર્ક કયા નંબર પર મોકલવાનું છે? રોહિત ભાઈ ને નંબર નથી ખબર તમને? ના. તો હું સેન્ડ ફરીવાર કરી દઉં. ચલો. હા. Okay, I am ending this session.